ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਬਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਭੱਟ ਨੇ, ਕਵੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਲਓ ਬਸ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ? ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਿਕੰਮੇ ਚੱਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਉਸਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਕੁਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੈਮ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਹਦ ਅਕਲ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਕਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਲੰਘ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੰਘ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ, ਲੰਘ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੰਘ ਗਏ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਕੜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ। ਸੁਧ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਰੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਝ ਔਗੁਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ तो फिर मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं, तू ठीक है, मैं गलत हूं। अपनी अकल ते रुक गए और ये रोक दिए। कई संघर्षशील मनुख होंदे ने, तकड़े होंदे ने, समाज दीआं औकड़ां नहीं रोकदियां। कई मजबूत हिरदे वाले होंदे ने, परिवारक औकड़ां नहीं रोकदियां, आर्थिक औकड़ां नहीं रोकदियां। पर अपनी सोचनी दे सामने ते हर बंदा कमजोर है। मैं ठीक हूं, तू ठीक है, तो फिर आत्म रस को क्यों कोई नहीं? अगर तू ठीक है तो आनंद क्यों नहीं है? तू ठीक है तो परम प्रकाश क्यों नहीं है? तू ठीक है तो फिर समाधि क्यों नहीं है? तू ठीक है तो तेरा हृदय निर्वैर क्यों नहीं है, निर्मल क्यों नहीं है? तू ठीक है तो दैवी गुणा दी दात क्यों नहीं है? तू गलत है।
समाज नूं गलत कह देना, परिवार नूं गलत कह देना, संसार नूं गलत कह देना, सारी दुनिया कह रही है। अपने आप नूं गलत कह देना कदी कदाई कोई आत्मदर्शी भगत कहता है मैं गलत हूं। मुझ अवगुण सह नाही दोष। मैं संबंधित भाई गुरदास जी का एक कवित थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। ओंकारेश्वर गुरुद्वारे च किधरे मैं सुना रहा सी, दो ब्राह्मण मैनू रोंदे हुए मिले, कहने ये किसदा पता है, सानू लिखा दो। ये गुरदास जी कौन ने तुसी कह रहे सी। मैं कि गुरु घर दे वेद व्यास ने। कहने लगे वेद व्यास ने, पर कहते की पैने अपने आप को। मैं कहा ठीक नहीं कह रहे, हालांकि उन्होंने दी भी अखां अशकबार सन। कहने लगे इतना ठीक कह रहे ने, सानू अपनियां गलतियां दिखाई देती, इतना ठीक कह रहे। खैर सुनावा थानू। भाई साहब कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। हे प्रभु इस तरह का स्वप्न ते मेरे कोल नहीं है। किसी रूप नूं अगे करके मैं तेनों रिझावां। मेरी जात भी उच्ची नहीं है, मैं कुल दा भी उच्चा नहीं। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, एक भी गुण कोई नहीं। गुणा तो भी हीना, ज्ञान तो भी हीना। ये किधरे अतकथने ना समझ लेना। हर ओ अभ्यासी, हर ओ जपेश्वर, हर ओ तपेश्वर महसूस करता है कि अज तक रस नहीं बनया तो मैं गलत हूं। ये ओदी तस्वीर भाई साहब साढ़े सामने रख रहे हैं। बस महापुरखों च ब्रह्म ज्ञानियां च खूबी होंदी है, अपने आप को अगे कर लेंदा है। अजे तक समाधि लीन नहीं होया, कोई कथा कीर्तन गुरबाणी गुरुद्वारे गुरु का दोष नहीं, तू दोषी है, तू दोषी। तू अपनी सोचनी तो अगे नहीं जा रही, तेरी सोचनी रोकी जा रही। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। हे गुरु मेरे ऐसे भाग भी कोई नहीं, भागा तो भी हीणा, तप तो भी हीणा, कुल तो भी हीणा, गुणा तो भी हीणा, ज्ञान तो भी हीणा। दूसरी पंक्ति, दिष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। तैनू वेख सकां अखां भी कोई नहीं, तैनू सुन सकां मेरे कोल कन भी कोई नहीं। मैं अपने बोल तेरे कन्ना तक पहुंचा सकां मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरे। हथ भी कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, टुंडा भी हाँ, लंगड़ा भी। चल सका पैर भी कोई नहीं, कुछ सेवा कर सका हाथ भी कोई नहीं। सुन सका मेरे कोल कान भी कोई नहीं, वेख सका मेरे कोल अखां भी कोई नहीं। कुछ बोल सका मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। कुछ समझ सका असलियत नो मेरे कोल बुद्ध बल भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, बित्तहीन,
कोई नहीं, मर्यादा भी कोई नहीं, रीत भी कोई नहीं, जीवन का ढंग भी कोई नहीं, भावना भी कोई नहीं, श्रद्धा भी कोई नहीं। चित चेते कर सके इस तरह की चेते शक्ति भी कोई नहीं, याद शक्ति भी कोई नहीं, समर्था भी कोई नहीं। कमाल की गल, जो महान ज्ञानी है वो कहता मैं ज्ञान तो ही ना, जो गुणा का सागर है कहता मेरे को कोई गुण नहीं। ऐसा नहीं परिवारक औकड़ा, संसारिक औकड़ा, आर्थिक औकड़ा तो लंघ के जो आया जप तप करके है उसको बहुत कुछ होणगे अनुभव, कुछ है न गुण, पर रस नहीं है। रस ना होने करके उन्होंने सारे गुण अवगुण दिखाई देंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, वित्तहीन, सहज स्वभाव रे, अंग अंगहीन, धीना धीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु तेरी चरण शरण किस तरह प्राप्त होवे। सारे अंग ते मेरे भंग ने, एक अंग थोड़ी भंग है, सारे ही भंग ने। अंग अंग भंग धीना धीन प्राचीन लग। कहते ने रजनी लियाई सी पिंगले नूं, पर पिंगला सी ना, हथ ते है सन, अखां ते है सन, ਕੰਨ ਤੇ है सन, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ बोल ते सकदा सी। भाई साहब कहते हैं अंग अंगहीन धीना धीन प्राचीन लग, शरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु सारे ही अंग भंग ने, ना हाथ ने, ना पैर ने, ना अखा ने, ना कन ने, ना जबान है, बुद्ध बल भी कोई नहीं, रो रीति भी मैं नहीं जानता, कोई गुण नहीं है, कोई कुल भी चंगी नहीं है, कोई समझ भी मेरे को नहीं। ये अवस्था किसदी बनती है? जो देखदा आखिरी बॉर्डर, आखिरी हद अकल दी, कहंदा है ऐ अकल, ऐ समझ, तू समाज दियां औकड़ां तो मैनू बचाया, तू आर्थिक औकड़ां दे होंदियां ते मैनू डिगण नहीं दिता, तू संसार दे झमेलियां तो मैनू बचाया, पर रब्बी रस्ते कोई नहीं, अध्यात्मिक रस्ते कोई नहीं, समाधि ते कोई नहीं, वो परम प्रकाश ते कोई नहीं, उस परम स्वरूप की झलक ते कोई नहीं। हुण दुनिया के अवतारी पुरुष की कहते ने, जिस अकल नूं नाल लेके इत्थे तक पहुंचे हैं, अगर सारियां नूं छड्ड के आया तो हुण इस अकल नूं भी छोड़, इस समझ नूं भी छोड़, हुण इस सुध बुध करते हर लई मेरी इनू भी छोड़। इसनों एक महान आलम गुजरी सदी दा हो गुजरिया, एक महान शायर, मैं अक्सर कहता हुना, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा दे संत कवि राविंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। गजब की गल, तीनों समकाली ने होए भी कोई टाइम नहीं, तिन्हां दियां रचनावां अध्यात्मक तल ते खड़ियां ने, बहुत टुमदियां ने। इकबाल कहंदा है तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। अकल ते है, अकल दा दम खम ते है तेरे को, जज्बे कोई नहीं, भावना कोई नहीं, दिल नहीं है। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जाओ अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये तो एक रस्ते दा दीवा सी ते तू दीवे दी परिक्रमा करन लग पे, घर नहीं है, रस्ते दा चानना सी, तू इहदे आले दुआले घूमन लग पे।
ਬਹੁਤਾ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੋ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਲ ਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ ਚਿਰਾਗੇ ਰਾਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਅੰਬੀਆਂ, ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਗਾਲਣਾ ਨੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਵਿਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਟੁੱਕੇ ਹੋਏ ਟੁੱਕੇ। ਕੁਸੰਗਤ ਨੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਗਾਲਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम के जो बीच ना खाई कहां। मालिक दी झोली ते अंब तां पैगा किधरे कवियां तो भी बच जांदा, गालना तो भी बच जांदा, तोतियां तो भी बच जांदा। टुके होए मालिक झोली च नहीं पांदा। भगत कबीर ऐसा कहता है, तेनू जिस तरह जगत दे च भेजिया से इस तरह वापस आ। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अज दा ये पावन पवित्र वाक इहदे च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रभु सिमरन की गल कर रहे ने। उसदे सारे साधन ने, कथा कीर्तन सेवा, ये सब साधन ने। सिमरन फल है। तुसी आखोगे सिमरन फल है, हाँ सिमरन जोड़ देंदा, याद ते जोड़ देंदी है। खुद चित आए महा आनंदा, चित चेते च आ गया, महा आनंद बन गया। सिमरन ते महा आनंद है। सिमरन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जो दुखी ने कल्प रहे हैं। प्रभु सिमरन दरबार है, बैठे के सारे कल्प दे बेचैन। सिमरन ते फल है। तू चित आवे तेरी माया, हे प्रभु ये तेरी बख्शिश है जे तू चेते आ जाए, तू याद आ जाए, क्योंकि तेरी याद ही ते महा आनंद है, तेरी याद ही ते महा रस है, तेरी याद ही ते प्राप्ति। इसनों मैं इंज बयान करदा हुंदा, संबंध सारे यादां दे ने। कोई भैण भरा दे संबंध नहीं आउंदे, कोई मित्र पुत्रां दे संबंध नहीं आउंदे। जो याद आंदा है वो संबंधी है। जिहड़ा बिल्कुल भुल गया कहदा संबंधी है। भुल गया भरा, भुल गया मित्र, भुल गया चाचा ताया, कदी याद ही नहीं आंदा, संबंधी है साडा, खास संबंधी है। कदी याद कीता? याद ते आउंदा ही नहीं। संबंध सारे यादां दे आउंदे। ठीक है, तू दानी होवेगा, ज्ञानी होवेगा, रोज दा सतसंगी होवेगा, सेवा करदा होवेगा, नहीं मनदे तो सिमरन करता होगा। सिमरन ते फल है, याद ते उसदी फल है। सब कुछ इस वास्ते करना है हिरदा सिमरन तक पहुंच जाए, उन्होंने याद करन लग पे। जैसे याद कर दे तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। ओदी याद महा आनंद है, उन्होंने भुल जाण नाल मर जाता है कि मनुख दे गुण मर जाते हैं, मनुख दियां खुशियां मर जांदियां।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੇੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬੇਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਤੇ ਖਾਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ अगर वो भूल गए। अगर वो याद आ तो फिर सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। धनासरी राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र वाक दे जो फरमान कर रहे हैं, छोटा मूल मंगल है, वो एक है, उस तो उत्पत्ति पालना नाश हो रहा है, ओंकार है, सत स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है और कृपा दा सागर है, दया दा सागर है। सब कुछ उसे तो आ रहा है, किस तो आ रहा है, जो वो एक है। इस तरह का छोटा मूल मंगल है। अगे शब्द आप सरवण करो। सिमरन करो, चेते करो, याद करो, सिमरन करो, की होवेगा? सुख की प्राप्ति करो। पर सिमरन किवें करिए? आरंभता सास सास संभाले। शायद मैं अर्ज कर चुके हैं, दुनिया के सारे महामंत्र एक श्वास दे पूरे हो जाते। वाहेगुरु इको ही श्वास लगे, राम इको ही श्वास लगे, ओम इको ही श्वास लगे, अल्लाहू इको ही श्वास लगे। मैं कुवैत, इराक और अरब इमीरात विच मस्जिदां दे अंदर इस तरह का जप देखिया, अल्लाहू अल्लाहू एक श्वास लगता है एकदम। एक ढंग है, श्वासां दी माला बना, और कोई सिमरना नहीं हो। सिमरना तो तेन दे दिता है, परमात्मा ने चल रहे है। माला ते चल रही है, याद नहीं चलती। माला ते चल रही है, जप नहीं चल रही। माला ते चल रही है, सिमरन नहीं चल रही। सांस विरास ते चलते पे ने, जप नहीं चल रही। जद भी बैठ आरंभता है, एक श्वास विच पूरा कर दिता कर। और जद वाहिगुरु आख किसी नूं सुनता के अंदर जावे। भोजन अंदर ही नहीं गया तो खून किस तरह बनेगा? शब्द अंदर ही नहीं गया तो समाधि किस तरह बनेगा? इस तरह श्वास श्वास विच उसदी संभाल कर, चेते कर, याद कर। हाँ जी। ऐसी दौलत है, इस लोक दे भी सहायक है, पर लोक दे भी सहायक है। जो धन है, सोना चांदी है, इस लोक दे सहायक है, पर लोक दे नहीं। कुछ वक्ती औकड़ा दूर हो जांदियां ने उहदे नाल, पर लोक दियां ने। ये ऐसी दौलत है, इन्हों भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, दौलत सरमाया है ईमाम बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। गर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी बंदगी। प्रभु दा नाम ऐसी दौलत है, लोग परलोक दे सहायक होंदा है। इकट्ठी करनी नहीं तो शर्मसार होवेगा, दुखी होवेगा, परेशान होवेगा। शर्मसारी तेनों जो है उठानी पैगी। साहिब कहते लोक दे ते परलोक दे मददगार है, सहायक है, जिथे किथे रक्षा करता है। हाँ जी। कोई
जेब दे चों धन कढ़ सकता है, गुरु का वचन हिरदे विच वसिया किस तरह कोई कढ़ सकता है? नहीं कढ़ सकता। चोर दे हथ नहीं पहुँचते, डकैत दे हथ नहीं पहुँचते, जेब तक ते पहुँच जाणगे, बथेरे जेब कतरियां दे पहुँच जाते, जेब कट्टी गई, घर तक भी पहुँच जाणगे, जेब तक भी पहुँच जाणगे। साहिब इत्थे कह रहे ने गुरु दा वचन, गुरु दा शब्द, गुरु दा मंत्र जी दे नाल वसदा है, मन दे विच वसदा है। हाँ जी अगे जिस मनुख दा सब कुछ बाहर पिया खतरे च है, वो कदी सुख दी नींद नहीं सो सकता। पानी का डर होवेगा, अग का डर होवेगा, चोर का डर होवेगा, कुछ चला गया चोर ले गया होवेगा। उंज भी आलम कहते हैं धन के भागी चार हैं, धर्म चोर निरप आग। बाहर का जिहड़ा धन है, उस धन नाल कुछ धर्म नहीं कमाया तो फिर उहदे भागी बाकी तीन होर ने केड़े? चोर निरप आग, अग जला देगी, किधरे पानी च डूब जाएगा, किधरे चोर जेब कतरा ले जाएगा। चोरी हो गई है, जाना ही सी, अग ने जला दिता है, जाना सी, तू धर्म के मार्ग के खर्च ही नहीं किया, धर्म का हिस्सा भी विचे जोड़ दिता अपने च, तो हुण अग जलाएगी, चोर ले जाएगा। सारियां दा धन चोर थोड़ी ले जाते हैं, गुस्ताखी माफ। धर्म चोर निरप आग। बाहर जिसका सब कुछ पिया खतरे च है, पानी डोब सकता है, जल अग्नि जला सकती है, राजा खो सकता है, राज दंड लग सकता है, बहुत बड़े बड़े टैक्स लग सकते हैं, पर यह ऐसा धन है परिपूर्ण परमात्मा का नाम, उहदी याद, उहदा सिमरन, उहदा शब्द, ना पानी डोब सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना चोर चुरा सकता है। हाँ जी प्रभु का सिमरन ऐसा है जैसे निर्धन नूं धन मिल जाए तो सुखी हो जाता है, जैसे अंधे नूं लकड़ी मिल गई है, जैसे रोंदे हुए बच्चे नूं मां का दुध मिल गया, इस तरह है प्रभु का नाम सहारा टेक, इस तरह का है प्रभु का नाम रक्षक। हाँ जी सिमरन की दात ऐसी है, नाम की दात ऐसी है, जैसे अथाह सागर दे किसी नूं बहुत मिल गया, जहाज मिल गया ते बड़े सुख दे ढंग नाल पार हो गया। प्रभु दे नाम दा सदका ना संसार दियां औकड़ा, ना परिवार दियां औकड़ा, ना दुनियावी औकड़ा उसनों व्यापदियां ने, और उस सुते सिर भव सागर तो पार हो जाता। साहिब रहमत करन, ये दात साडी झोली च पावन। कथा सुनदे होया, कीर्तन सुनदे होया, सेवा करदे होया, सारे धार्मिक कर्म करदे होया ओदी याद बनी रहे, ओदा सिमरन बनिया रहे, ओदी चेता बनिया रहे। आरंभता का ढंग सतगुरुदेव जी ने दस दिता है, और फिर आरंभता इस तरह हो गई तो फिर बाद विच ऐसा हो जाता है, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। बाकी जैसे सतगुरु कल हुक्म बख्शिश करनगे आप जी के सामने रखांगे। सारियां दा धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।